See, these empty spaces are there. No, please come forward. There's hardly this. It's looking not very nice. जो खाली जगह है अच्छे नहीं लग रहे कहा, तो इसलिए Actually, the आप men. आगे आ जाएं। Actually, the men are better than the women. The women are gone all behind. वो कहते हैं ना पुरुष ज़्यादा बेहतर है स्त्रियों से, लेकिन यहाँ पे तो स्त्रियाँ ज़्यादा पीछे दिख रही हैं अभी। Please come forward. सब लोग आगे आ जाएं। Yeah. Don't leave empty spaces. No. बीच में खाली जगह ना छोड़ें। There is no corona. There is nothing like that. अभी यहाँ कोरोना वरोना नहीं है। There is no social distancing. हाँ, कोई सोशल We डिस्टेंसिंग भी carry नहीं। God's anointing. हम प्रभु के उस अभिषेक में हैं। What is in you is going to come on a neighbor. What is on you जो आपके ऊपर है is going to come on a neighbor. और वो आपके पड़ोसी के ऊपर भी आने वाला है। So who do you carry? तो आप किसको लेके चल रहे हैं? Things of this world, इस संसार की चीजों को, the garbage of this world, या इस संसार के कूड़े को, or the Spirit of God, या परमेश्वर की आत्मा को, or the movement of God? परमेश्वर के जो उस कार्यों को? What do you carry? आप क्या लेके चल रहे हैं? Ask your neighbor. आपने पड़ोसी से पूछे आप क्या लेके चल रहे हैं? Good news or all this news what is happening in Delhi? हैं? सुसमाचार लेके चल रहे हैं क्या संसार की बातें? Ask them. Ask them. पूछिए, पड़ोसी से पूछिए। Ask. Just ask a question. आप पड़ोसी से सवाल करिए, Don't give an answer. उत्तर मत दीजिए, केवल सवाल पूछिए। Come on, ask. Talk to your neighbor. अपने पड़ोसी से पूछिए, That is the only answer you'll get. You'll get the answer. आप उत्तर पा When the जाएंगे। neighbor asks you, जब आपका पड़ोसी पूछता है and you ask the neighbor, और जब आप पड़ोसी से पूछते हैं, you don't have to give an answer. You get answer for yourself. आप उत्तर देने की जरूरत नहीं, आप उत्तर पा जाएंगे। Who do you carry? आप किसको लेके चल रहे हैं? Come on. बोलिए। I know you carry Prabhu. You ask your neighbor. आप अपने पड़ोसी से पूछिए। Okay. Okay. Praise Jesus. प्रभु का धन्यवाद हो। We are expecting हम आशा रखते हैं every time हर समय when we talk, जब हम बातें करते हैं, God is hearing. परमेश्वर हमारी सुन रहा है। More than you ask, जितना आप मांगेंगे, He knows what you need. वो जानता है आपको क्या चाहिए। Okay. So stay committed. बड़े समर्पण के साथ बने रहें। Anybody is tired from morning to evening who is come feeling sleepy, lousy and all something that way? कोई ऐसा है जो सुबह से आकर के यहाँ पर थका हुआ और बहुत ही जो है उस प्रकार बोर महसूस कर रहा है, ऐसा कोई है क्या हमारे बीच में? Anybody is feeling like that? कोई ऐसा है जो ऐसा महसूस कर रहा है? When you're connected to the King of Kings and the Lord of God, His presence is on you, you don't feel tired. और जब आप परमेश्वर के संग जुड़े रहते हैं, उस राजाओं के राजा के साथ जब आप जुड़े रहते हैं, उस उपस्थिति में आप जब रहते हैं तो आप थका हुआ नहीं महसूस कर सकते। You open the book of, I wanted to share something from the book of Jeremiah. We'll come back to that. मैं यिर्मयाह की पुस्तक से कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ, But I will come back to that. We'll go to the book of Psalms chapter 1 verse 1. और उसमें जाएंगे हम, लेकिन उससे पहले हम भजन संहिता 1:1 में आ जाएंगे। I will tell you what happens when you read the book of Psalms chapter 1 verse 1. और जब भजन संहिता 1:1 आप पढ़ते हैं तो क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। What did it say? Blessed is the man धन्य के क्या ही धन्य है वह पुरुष that walks not in the counsel of the ungodly, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, nor stands in the path of the sinners, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, nor sits in the skin of the और ना scornful. ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। Father God, प्रभु यीशु right now, इसी वक्त as we read your word, प्रभु हम आपका जब वचन पढ़ रहे हैं, we submit our entire being into your hands. प्रभु हम हर एक चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। Every word which comes out from our mouth, जो भी वचन मेरे मुंह से निकले, bring glory and praise to you प्रभु alone. सारे महिमा और आदर केवल आपको मिलने पाए। Nothing of us, all of yours. प्रभु हमारा कुछ नहीं बल्कि आपका ही चीज, आपका वचन। Let every person seated here be transformed through your word. प्रभु जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं आपके वचन के द्वारा एक बदलाव को देखने And पाए। those watching from online also. प्रभु जो ऑनलाइन जितने लोग सुन रहे हैं वो भी उसी प्रकार महसूस करें। Touch them, Lord. प्रभु आप स्पर्श करें, Touch them. आप छू ले प्रभु जी, Touch them. आप छू ले प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Amen. आमेन। Now, whenever I read Bible, जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ, I don't know about you.
मैं नहीं जानता आपके बारे में, but I will say I take it everything for me personal. और मैं अपने लिए सारी चीजें व्यक्तिगत तौर से वचन से लेता हूँ। It's all for me. ये सारी बातें मेरे लिए हैं। Are you taking it that way? क्या आप इस प्रकार अपने जीवन में लेते हैं? Or it is some historical thing? क्या ऐसा सोचते हैं कुछ ऐतिहासिक बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं? It happened. ये हुआ था, God was doing. परमेश्वर करता था। Now he's gone for some summer vacations or some tourist holiday or something. सो अभी वो समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी पे, हॉलीडे पे गया हुआ है। Is it like that? ऐसा है क्या? Okay. Now it says Psalms 1 chapter 1. भजन संहिता 1 का 1 इस प्रकार कहता है। What does it say? ये क्या कहता है? Blessed is the man धन्य है वो पुरुष that walks not in the counsel of the ungodly, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, nor stands in the way of sinners, और पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, nor sits in the seat of the scornful. और जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। Blessed am I. और मैं आशीषित हूं। Come on, declare it over your life. अपने जीवन के लिए आप घोषणा करें इस बातों को। Blessed is me. क्या ही धन्य हूं मैं, I walk not मैं नहीं चलता in the counsel of the ungodly. दुष्टों की युक्तियों पर मैं नहीं चलता। Whenever you say this, those things are going to come to pass over your life. That's और why जब I आप इन बातों को बोलते हैं आपके जीवन में ये बातें होंगी। say. What is the meaning of counsel? और जो यहाँ पे कहता है दुष्टों की युक्ति में, मतलब यहाँ पर मतलब क्या है? There are people who are unrighteous. या बहुत से लोग हैं जो दुष्ट हैं, जो विचारों में गलत हैं। They will give you ideas वो बहुत सारे आइडियाज, मतलब बहुत सारे बातों को आपको, सुझावों को देंगे, which are not from the kingdom of God, but they are from the pits of hell. और वो परमेश्वर के राज्य की बातें नहीं होंगी, बल्कि अंधकार के उस राज्य की बातें So होंगी। when you hear their counsel, और जब आप उस जो लोगों से, उस युक्तियों से जब आप सुनते हैं, you are under a curse. और आप क्या है, श्राप में चले जाते Why? हैं। Why it says? क्यों ऐसा कहता है? Blessed is the man who does not walk. So when you're walking in their counsel, in their ideas, you're already under a curse. और यहाँ पे क्यों ऐसा कहता है? धन्य है वो पुरुष जो उस मार्ग में नहीं चलता दुष्टों की युक्ति पे। अगर इसका मतलब हम उस पे चलेंगे तो हम अपने ऊपर श्राप लाते हैं। And not stand in the way of the sinners. और यहाँ पे कहता है कि पापियों के मार्ग में भी नहीं खड़ा होता। So you are who? Called to be a light to this world. और आप जो बुलाए गए हैं इस संसार को प्रकाशवान करने के लिए। I guess it is Matthew chapter 5 verse 13 says, no? और I यहाँ am the पर light of the world. मत्ती 5 का जो 13 इस प्रकार कहता है। We'll jump to that again now. हम उसमें वापस जाएंगे। I don't come prepared. I just learn something little bit and God just shifts me all the time. Go from this direction, that direction. That's how I move. और जिस प्रकार मैं बहुत ही तैयारी के साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर जिस प्रकार अगुवाई कर रहा है उस वचनों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। So what does it say? मैं वो कहना चाहता हूँ मत्ती 5, क्या मैथी Matthew 5:13, I guess, no? 5 का 13। Yeah, am I right? यस। 13 and 14 it says, right? तुम पृथ्वी के नमक हो। 14 I said first, yeah. हाँ। First I said 14, then I said 13. 14 पढ़िए पहले। तुम जगत की ज्योति हो, हाँ. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। Enough. और बस। So you are the light of this world. तुम जगत की ज्योति हो। So say to yourself, आप अपने आप से बोलें, I am the light of this world. मैं जगत की ज्योति हूँ। That much only. Go to Matthew 5:13 now. और 5 के 13 में भी जाइए जरा। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। Okay. So you are the salt of the earth. तुम पृथ्वी के नमक हो। I am the salt of this earth. मैं पृथ्वी का नमक हूँ, इस प्रकार बोलिए। Salt is what? नमक क्या है? When it adds taste उसका एक स्वाद होता है। for anything. किसी भी चीज में वो मिल जाता Especially है। when you have food. जब आप खाना खाते हैं There is तो no salt, there is no taste. अगर आप खाना खाते हैं, अगर उसमें नमक नहीं है तो स्वाद नहीं है। So if the salt is becoming tasteless, अगर स्वाद जो आप कम महसूस करते हैं तो Christianity मसीहत
without the anointing बिना जो अभिषेक के, is salt which has got no taste. और जो ऐसा नमक है जिसका स्वाद नहीं है। Are you like that? आप वैसे हो क्या? Ask your neighbor. अपने पड़ोसी से पूछे, Are you salt without any taste? क्या आप ऐसे नमक हो जो स्वाद नहीं करता? Okay. So if it is like that, अगर ऐसा है तो there's no use of that salt. ऐसे नमक का कोई फायदा, लाभ नहीं है। If I was like this, अगर मैं वैसा होता, I want more taste to come on me now. I want to repent and get that same fire, the same anointing of God. मैं ये कोशिश करता कि मैं और अपने आप को नमकीन कर पाऊं और अपने आप को मन फिराव के साथ फिर से प्रभु के सम्मुख ला पाऊं। Okay. So now we'll go back to Psalms chapter 1 verse 1. और अब भजन संहिता 1:1 में वापस जाएंगे। So why did we jump from that to Matthew 13 and 5:13 and 5:14? मत्ती जो 14 और 13 से हम क्यों आगे इधर वापस आए भजन संहिता में? God has put you to a place परमेश्वर ने आपको एक जगह पे रखा है, not to get transformed by the from darkness to light. Sorry, you're the light. So darkness shall not overcome you. आप जो है कभी भी आप प्रकाशवान है, आपके अंदर प्रकाश है, आप कभी भी अंधकार के अधीनता में ना आए। So God has put you to transform that place. परमेश्वर ने आपको उस जगह पे रखा है कि आप उनको बदल पाए, Not for them to transform you. और वो आपको बदल दे इसलिए नहीं। That is why that you should not walk in their counsel. They should walk on your counsel. Not और इसलिए वहां पर लिखा कि आप दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, बल्कि वो आपकी युक्तियों पर चलने पाए। God has made you a channel of blessings. और परमेश्वर ने आपको आशीषों का एक जरिया बनाया है। So then the second thing it says you should not stand in that way. You should not move with them. और वचन कहता है कि आप उस रास्ते पे नहीं खड़ा होना है। किस प्रकार का है? Nor stand nor sit. और कहता ना उन पापियों के मार्ग में खड़ा होना है, ना ठट्टा करने वाले की मंडलियों में बैठना, ना खड़ा होना है ना बैठना है। So his delight is in the law of the Lord. और यहाँ पे कहता है कि वो परमेश्वर की उस व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। दूसरे वचन में, And in his law does he meditate day and night. और दूसरे वचन में ये भी कहता है कि उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। Now say this after me. आप अब ये बात मेरे पीछे पीछे I बोले, delight in the law of the Lord. मैं परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ। बोलिए। And in the law of the Lord I will meditate day and night. और उसकी व्यवस्था पर मैं रात दिन ध्यान करता रहता हूँ। And I shall be like a tree और मैं उस वृक्ष के समान हूँ planted by the rivers of water. जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, That will bring forth in his due season. और वो अपनी ऋतु में फलता है। His leaf shall not wither. और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। Whatsoever he does shall prosper. इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। I am like a tree मैं उस पेड़ के समान हूँ। बोलिए। planted by the rivers of water. और जो बहते नालियों के किनारे लगाया गया है। I will bring forth my fruit in my season. मैं अपनी ऋतु में फलता हूँ। My leaf will never wither. और मेरे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। Whatever I do, I will prosper. और जो कुछ मैं करूंगा वो सफल होगा। This is very, very powerful. This is very, very powerful. ये बड़ा ही सामर्थी है। So who has made you a tree? You're a tree. और जिस आपको क्या पेड़ बनाया? पेड़ हैं Bearing fruit फलवंत from the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य के लिए। You're planted from top. God has brought you down. और परमेश्वर ने आपको अपने पास से भेजा है और इस जगह पे आपको लगाया है। That will bring forth fruit. और वो फल लाए। And this is the season. और ये जो ऋतु है, And whatever you do will prosper. और जो कुछ आप करोगे वो पूरा होगा, सफल होगा। You will not. That means what?
Your life shall not wither. Means nothing of yours. There will be no losses. There will be victory over your life. और इसका मतलब यह कि तेरे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, मतलब आप हमेशा जयवंत होंगे, आप उस पराजय को नहीं देखेंगे। There is no age mentioned in that. यहाँ पे कोई उम्र नहीं लिखा हुआ। It can be 30, it can be 40, it can be 18, it can be anything. ये 30, 40, 80 कुछ भी हो सकता है। But as long as you renew your mind, you will receive this. और जितना आप अपने मन को नया करेंगे उसको आप प्राप्त करते जाएंगे। Whatever he does, he shall prosper. और जो कुछ वो करेगा उसमें सफलता होगी। He will not lose. Anywhere you go to do church ministry, वो wherever you go. वो कोई भी हानि नहीं उठाएगा, चाहे जो सेवा को वो करे, Because God's word says. क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। Because you don't hear wrong things, you hear righteous things from God. आप परमेश्वर से कोई गलत चीज नहीं सुनते, कारण ये है क्योंकि आप हमेशा परमेश्वर से भली बात ही सुनते हैं। Okay. Then it talks about the ungodly are not so, verse 4. और चौथे वचन में हम देखते हैं दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। Yeah. So then what does it say? They are like the chaff that the wind blows away. जो ऐसे भूसी के समान होते हैं जो पवन जो उसे उड़ा ले जाती है। Because what is the reason behind that? और क्या कारण है इसके पीछे? Because they are not rooted in God's word. कारण ये परमेश्वर के वचन में जड़ नहीं पकड़े हैं। That is the reason. यही कारण है। That is why we want you to stand on God's word. इसीलिए कहते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों पे हमें स्थिर बने रहना है। As long as you stand in God's word, जितना आप परमेश्वर के वचनों पे बने रहोगे, whatever will come against you, जो भी आपके विरोध में आएगा, you will stand firm. आप सीधे खड़े रहोगे, Nothing can shake you. आपको कोई भी हिला नहीं सकेगा, Because God's hand is on you. कारण परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर है। Tomorrow another big pandemic will come that will never shake you. और जो आने वाले दिनों में और बड़ा कोई जो रोग या और कोई बड़ा इस प्रकार के जो वायरस आ सकता है, लेकिन वो आपको क्या बोलते हैं नहीं हिलाएगा। Why? क्यों? Because you're blessed. कारण आप आशीषित हैं। If you are hearing the counsel of what the news is there and all those people say some other sickness has come, this is there. The moment you hear opening doors for that, you are believing those things. और जब क्या ही धन्य वो जो यहाँ पर जैसे पहले वचन में हमने पढ़ा कि जब आप दुष्टों की युक्ति को सुनते हैं, उन बातों को सुनते हैं, उन समाचारों को सुनते हैं, उन मीडियाज को आप सुनते हैं, वो सारी चीजें आपके अंदर भय ले आती है। So that is why you got to guard your heart. इसलिए अपने हृदय को जो है हमेशा उसके लिए आपको ध्यान रखना है। Wherever you go, you will be tested. जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ पर आपके सामने परीक्षा होगी। Now after you leave this place, there will be somebody in the family will talk something which is not in line of God's word. और जब शायद आप यहाँ से आप जब निकलोगे तो परिवार में आपको शायद कोई मिलेगा जो परमेश्वर के वचन से आपको नहीं बल्कि आपको कुछ निराश करने वाली बातें बोलेगा। What are you going to do? Here you'll feel nice to talk, but there when it challenges are going to come, what are you going to do? You have to be quiet or you going और to listen? ऐसा समय जब आप यहाँ पे तो आनंद मना रहे, लेकिन जब बाहर जाएंगे कुछ ऐसा होगा तो उस परिस्थिति का आप सामना कैसे करेंगे? So how are you going to speak? आप कैसे बातें करने जा What रहे have हैं? you been trained today? आपने सुबह से क्या सीखा है? What have you been learned? क्या आपने सीखा है? To speak to the powers and principalities all coming against you. और आप उसके विरोध में बोलना है जो अंधकार की शक्ति, अंधकार के सामर्थ आपके विरोध में आते हैं, उनके विरोध में आपको बोलना है। The moment you will not go and sit and debate and fight my opinions, and that is not the way to fight with them. और जब उनके साथ लड़ने का ये तरीका नहीं है कि आप डिबेट जैसा करेंगे, वो क्या कह रहे हैं आप उसको जवाब देंगे, वो आपको जवाब देंगे, ऐसा नहीं। You can say something like this. आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। God's word says, परमेश्वर का वचन कहता है, I don't hear the counsel of the ungodly because I'm a blessed, I'm a child of God. मैं दुष्टों की युक्ति को नहीं सुनता। Whatever you are speaking is not coming from the kingdom of God. It is coming from the pits of hell. जो आप बोल रहे हो परमेश्वर के राज्य की ओर से नहीं आ रहा है, बल्कि उस अंधकार के उस आग, उस दुष्टता के उस वहां से आ रहा है। I am a child of God. I will hear what my Father in heaven says to me. मैं परमेश्वर के संतान हूँ, जो मेरा प्रभु कहता है मैं उसको सुनूंगा। I have the righteousness of God. मैं परमेश्वर के उस कार्य को बताऊंगा। I will trust the Lord with all my heart. मैं पूरे हृदय से उस पर उसका इंतजार करूंगा, उस पर विश्वास I करूंगा। will not lean unto my own understanding. मैं अपने बुद्धि पर निर्भर नहीं In रहूंगा all my ways I'll acknowledge Him, और मैं अपने हर एक मार्गों में उससे राय लूंगा and He will direct my path. और वो मेरे रास्तों को It's in the चलाएगा। book of Proverbs. I don't want to go into that. और ये नीति वचन की पुस्तक से है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। Okay.
So we'll go back now to go to verse 5. उसके 5वें वचन में हम जाएंगे। Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर रह नहीं सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में बैठ सकेंगे, ठहरेंगे। So there is always separation हमेशा एक अलगाव है, between two kingdoms, दो राज्यों के बीच में एक अलगाव दिखता है, kingdom of God, kingdom of darkness. परमेश्वर का राज्य और अंधकार का राज्य। And God knows verse 6 it says, the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. और 6वां वचन कहता है क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग को जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाता है। So you got to make a choice. ये आपको चुनना है, Nobody can force you. कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। We are going to, because we love, we are going to share something. हम आपसे प्रेम करते हैं इसलिए कुछ बात आपसे कहना चाहते We हैं। want you to become just better than what I am. हम चाहते हैं कि आप वैसे बने जो हम हैं उससे बेहतर बने, That is what I am called for. और उसीलिए मैं बुलाया गया हूँ। And go to Jeremiah chapter 1 verse 4. और यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय 4 वचन में हम जाएंगे। Yeah. How does God call his people? परमेश्वर अपने लोगों को कैसे बुलाता है? His prophets. उसके भविष्यवक्ताओं को। You may say, I am not one and all, but God's word calls you, declares the prophecy. So whenever you are releasing God's word, you don't have to be like all those prophets, but you are a prophet. और जो आप उन भविष्यवक्ताओं के लिए नहीं बल्कि आप खुद एक भविष्यवक्ता हैं, उस अनुसार इसको सोचें। You don't have to call yourself, but God's word calls you who you are. You don't आप उसको कहने की जरूरत नहीं अपने आप को भविष्यवक्ता, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता You है। don't want, you should not tell people to call me by that title. That is not God wants you to say. और आप लोगों से नहीं बोलना कि आप मुझे उस टाइटल से बुलाए भविष्यवक्ता करके। Pope, Reverend and all that, we don't want those titles. जो बड़े बड़े टाइटल है, पॉप, रेवरेंट और अपोस्टल, ये सारे टाइटल हमें नहीं चाहिए। People want to call it a different thing, but you don't have to demand them to call you, know. लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन आप उनसे कह के नहीं बोलना कि आप मुझे ये बुलाओ। If they call you, it's one thing. If they see some apostolic gift on you or a prophetic gift on you, they can call you. But you don't ask somebody to call you, no. Call me this. I don't want to be. It's a self-exaltation. और जो आप खुद नहीं कराना है, अगर आपके अंदर वो उस चीज को कोई देखता है, उस अनुसार वो बुलाता है तो वो जरूर अच्छा है, लेकिन आप खुद कराते हैं तो ये आप अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। So even if they call you, say I'm a simple person, जब आप बुलाए कोई एक साधारण व्यक्ति, a humble servant of God, एक ऐसा कोई बोले कि बड़ा ही दीन परमेश्वर का दास, that much is more than enough. वो बहुत काफी है। And then it says, verse 4, it says, then the word of God came to me saying. और तब वचन 4 इस प्रकार कहता है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। Who is saying that? ये कौन कह रहा है? Who is saying? कौन कह रहा है यहाँ पे? Okay. Then it says, God spoke to him, so he says, before I formed you. और यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि गर्भ में रचने से पहले, In the belly, और जो गर्भ में रचने से पहले ही I knew you. मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। Before you came forth of the womb, और जो गर्भ में रचने से पहले ही I sanctified you. और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया है। And I ordained you a prophet to the nations. और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। So all this, और ये सारी बातें you got to say for yourself. ये अपने लिए आपको बोलना है। Now, अब बोलिए, now, अब God is saying to me, परमेश्वर मुझसे कहता है, before I formed you, गर्भ में रचने से पहले ही He knew me. वो मुझे जानता है। Before I came out of the womb, और मैं उत्पन्न होने से पहले ही I have been sanctified, और मैं उसके द्वारा अभिषेक किया गया हूँ। and I have been ordained a prophet to the nations. और हमें उसने जातियों का भविष्यवक्ता उसने ठहराया है। Okay. Then now we go back to Jeremiah. It says, then said I, Lord, behold, I cannot speak, for I am like a child. Everybody makes such excuse, right? देखिए 6वां वचन कहता, तब मैंने कहा, हाय प्रभु हो यहोवा, देखो मैं तो बोलना ही नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। कई बार हम ऐसे बहानों को मारते हैं प्रभु के सम्मुख, Because he is weak. क्योंकि वो कमजोर है। Many people of you all are looking weak from the outside. बहुत से लोग बाहर से बहुत कमजोर दिख रहे हैं।
Every person in the Bible, the prophets, they were very weak. और बहुत से भविष्यवक्ता जो उस प्रकार कमजोर थे People made fun of them. और लोगों ने उनका मजाक उड़ाया Lot of things they did. और बहुत सारी चीजों को उन्होंने किया। God uses the foolish things of this world to confirm the wise. परमेश्वर ने इस संसार के मूर्खता को चुन लिया कि जो ज्ञानियों को लज्जित करे। Why? क्यों? Because he needs the glory, nobody else. के कारण ये है केवल महिमा उसी की हो सकती है और किसी की नहीं। Our education, all those things, our degrees are nothing. They are only meant in this world. They don't qualify us to go to heaven. और हमारा जो पढ़ाई है, हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो भी हमने किया है, उस सब चीज का एक सीमा होता है। You got to focus on eternity. आपको अनंत काल की ओर आपको ध्यान करना है। Tomorrow is not certain. और कल जो है वो अचानक नहीं है। You have to be right in the eyes of God. आप परमेश्वर की नजर में आपको सही ठहरना है। You got to quickly repent, no justification. आपको जल्द से जल्द अपना मन फिराव करना है, ना कि अपने आप को बचाव करना है कि मैं सही हूँ। The moment you justify, you're out of God's will. जब आप अपना बचाव करते हैं जिस समय कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, तो आप तुरंत परमेश्वर की योजना से बाहर चले जाते हैं। And then it will become same happen to Saul will come on you. और यही जो जैसे शाऊल के ऊपर आया वही हमारे ऊपर आ जाएगा। Okay, so you have seen this book, the book of the Bible. हम बाइबल में देखते हैं You see lots of mistakes which these people have done, but still God loved them. और देखिए बहुत से लोगों ने बहुत सारी गलतियां की लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। But still, if they make these mistakes and if we are also doing the same thing, we are foolish people. Even after examples have been set before us, if we are doing the same things, we are not wise. तो जो परमेश्वर के वचन में जो एक एक उदाहरण दिए हैं जिन्होंने गलत किया, अगर हम भी उसी गलतियों को दोहराते हैं तो हम मूर्ख हैं, क्योंकि हमें पहले से उदाहरण दिखा दिया गया कि ऐसा करने से उनके गलत हो किया। We are nothing. We are wasting our time. हम कुछ नहीं है, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। Okay. Now, whenever this situation comes, I am weak. I can't do anything. God will give you the grace. You got to stand. और जब ऐसी परिस्थिति आती है, आप कमजोर हैं, आप कुछ भी नहीं है, जब बोलते हैं परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है खड़ा होने का। So God will make you stand. परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। First He'll make you stand. वो पहले आपको खड़ा करेगा, Then He'll make you talk. फिर वो आपको बोलने का सामर्थ्य देगा। And the moment you start talking, जिस समय आप बोलने लगेंगे God is going to move. परमेश्वर कार्य करने लगेगा, Because you are called. क्योंकि आप बुलाए गए हो। That's what it says. यही यहाँ पर कहता है, Much more before you were formed in your mother's womb. जब आप माता के गर्भ में रचने से पहले ही God already called you. परमेश्वर ने आपको पहले से ही बुलाया It है। is not written only for Jeremiah. That's why I said you have to take it personally for yourself. यहाँ पर यिर्मयाह के लिए नहीं, आपको अपने व्यक्तिगत तौर से इसे अपने जीवन में लेना है। If you don't take it, अगर आप इसे नहीं लेंगे it is like one history book or some other whatever book you can. और आपको लगेगा ये तो ऐतिहासिक बातें हैं बस ही, Then these things don't come to pass. तो ये चीजें आपके जीवन में नहीं होंगी। You got to grab it and take it by force. आपको उससे सीखना है और उसे अपने जीवनों में लागू करना है। You got to fight for your things. आपको अपनी चीजों के लिए लड़ना है, Not physically. शारीरिक तौर से नहीं। Be violent. और जो एकदम जो अपने आप को एकदम जो उत्साहित होते हुए Snatch it and take it. Pull it और for yourself. उसे खींच के प्राप्त करें, That is what that is called hunger. तो वो वही प्यास को दर्शाता है। If she gets something, if I am not getting, there's something wrong with me. I have to take it. अगर वो प्राप्त कर रही है, ये प्राप्त कर रही है, अगर मैं नहीं प्राप्त कर रहा तो जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। See, we want, when we pray for the baptism of the Holy Spirit and praying in tongues, I'm going to pray with full power and everything I'm going to pray, but if you're not going to listen, you're not going to cooperate, you'll not receive it. और जो है जब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अन्य भाषा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो जब मैं तो अपने सामर्थ्य के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, उस चीज़ को कर रहा हूँ, लेकिन जब आप उस चीज़ को ग्रहण नहीं करेंगे, अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में उस प्रकार नहीं होंगे, तो आप उसको नहीं पाएंगे। It is for everyone. वो सब के लिए है। Don't say that we want everyone to get baptized in the Holy Spirit. It's easy to baptize in water, and you'll say, that fellow goes to save and goes to heaven and all kind of things. There are a lot of things which you have to do. It's just the beginning of a new life. और जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम में से हर एक को प्राप्त करना है, जैसे पानी का बपतिस्मा जो बड़ा आसान लगता है, उस प्रकार पानी में जाते हुए। Okay. Now we'll go to verse 7. It says, वचन 7वां इस प्रकार कहता है, I would say now, when the Lord said to me, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, do not give excuses. Say that. मत कह कि मैं लड़का हूँ। Yeah, but that what we are saying, we just customize it for ourselves. ओके।
Because everybody is not a small child, no? So yes, so you can say, I don't want to hear excuses. आप इस प्रकार बोले कि मैं बहाने नहीं सुनना चाहता। बोलिए। शैतान का बहाने. मैं, हाँ, Okay? So I will go. मैं जाऊंगा Wherever God sends me. परमेश्वर जहां मुझे भेजेगा, And hear God's command. और परमेश्वर की आवाज को, उसकी आज्ञा को मैं सुनूंगा। Whatever He tells me, जो कुछ वो कहेगा I will speak. मैं बोलूंगा। Okay? This is called faith. यही विश्वास कहलाता है। Right now you can't do, but you're declaring your destiny by speaking all these things over your life. अभी आप ये नहीं कर सकते, लेकिन आप इसकी घोषणा कर रहे हैं जो आप करने जा रहे हैं। This is prophetic. It is not that what you see, that dreams and all. This is your prophetic, you're prophesying your destiny by speaking your words. और ये जो है भविष्यवाणी के बातें हैं, ये नई स्वप्न वाली बात नहीं, जिस प्रकार एक भविष्यवाणी के शब्द हैं जो आप, जिसको अभी आप बोल रहे हैं और जिसको आप करने जा रहे हैं। Okay. Amen. Now I will tell you how people lives also become very wicked by their words. और How people change their destiny by their words. कैसे लोग अपने मार्गों को बदल दिए अपने शब्दों के द्वारा। There was one old lady in a house when we were small. और जब एक बुजुर्ग स्त्री थी जब हम छोटे थे। When I was, I think, what's your daughter's age? When younger one? 5 years. 5 years. I think so. Yeah, around 5-6 years old. When I was 5-6 years old, at the age of 6 years, मैं जब 5-6 साल का था, there was one lady. एक बुजुर्ग स्त्री थी। She was kept in a house to work. वो एक घर पे रखी गई थी काम करने के लिए। She is very honest. वो बड़े ईमानदार थी। She will not steal 1 rupee also. वो एक भी रुपया नहीं चुराती थी। But she had only one weakness. लेकिन एक ही कमी थी उनकी। If you tell her anything, she'll get angry and she'll become like a boss. और जो अगर आप उससे कुछ कहोगे तो वो एकदम गुस्सा हो जाती थी और एकदम मालिक बन जाती The थी। moment you tell anything to her, जब भी आप कुछ उससे कहते थे, she should say, वो कहती थी, I'll take my bag, मैं अपना बैग लूंगी, I'll walk off. मैं निकल जाऊंगी। There are many places, यहाँ बहुत से जगह हैं, old age homes, बहुत सारे जो बुजुर्ग लोगों को रखने वाला जगह है, and also places to beg around. और बहुत सारे जगह जहाँ भीख मांग के जी सकते हैं। I'll get food. मैं खाना मुझे मिल जाएगा, I'm happy with that. मैं उसके साथ खुश हूँ। Every time when you correct her, जब भी आप उसे सही करोगे, she used to prophesy her destiny. वो अपने भविष्य के लिए भविष्यवाणी कर देती थी। And you know what? आपको मालूम है क्या हुआ? It sounds very funny to hear this, ये सुनना बड़ा मजाकिया लगता है, but she ended up in that place only. लेकिन सच बताए तो उसका अंत ऐसा ही हुआ। And you know what? The people who she used to, her dear people in the family, no? और जो उस परिवार में जो लोग थे, They are not her enemies actually. वो उसके दुश्मन नहीं थे। But what happened? No, whenever you speak these words, no, God लेकिन- will turn your dear people against you because you have spoken these words. जो आप बोलते हो ना, कई बार आपके बोले गए हुए चीजें वो आपके जो आपका भविष्य बन जाती हैं। And those people will come against you. You don't know why. You will call them bad but you don't know why they are coming against you. और वो लोग आपके विरोध में आएंगे, आपको नहीं मालूम है वो लोग क्यों मेरे विरोध में आ रहे हैं, क्योंकि आपने बोला हुआ है वो बातें। So you have to be very careful what you speak. इसलिए बड़ा ध्यान से बात करना है आप क्या बोलते हैं। Yeah, that's why whenever we pray, we rebuke a lot of bad words. All words spoken in the form of a curse, we got to renounce it and re-say it in the form of a blessing. इसलिए तो हम हर वक्त जब प्रार्थना करते हैं, जो बातें हमने बोला है, हमने श्राप की बातें बोली, उन सब के लिए हम क्षमा मांगते हैं। I'm telling you honestly, I've gone to a lot of experiences. I'm not very big pastor and something small, but what I carry, I know many people. I've not heard from their mouths also. मैं यहाँ पे जो अनुभव बता रहा हूँ, मैं कोई बड़ा पास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने अनुभव से इन बातों को होते हुए देखा है। जो Whenever I make a statement, I be very cautious what I speak. और इसलिए मैं जब भी कोई बातें बोलता हूँ, बड़े ध्यान से मैं बोलता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। What you hear is your problem. जो आप सुन रहे हैं वो आपकी समस्या है। I say with a pure heart, not about any criticism or exalting myself. No, sorry. मैं यहाँ पे अपने हृदय, सच्चे हृदय से बोल रहा हूँ। मैं किसी को उठाने के लिए वैसी बातें नहीं कर रहा। नहीं, अपने आप को उठाने के लिए हाँ, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए नहीं बोल रहा। Sorry, I don't do that. मैं वो बातों को नहीं करता। I don't want to fall down like other people. मैं औरों की तरह गिरना नहीं चाहता। I want to remain as a donkey, let God sit on me and take me wherever He has. मैं उस गधे के समान रहना चाहता हूँ, जहाँ प्रभु मुझे ले जाना चाहता है मैं जाऊँगा। Okay, if you're like that, अगर आप उस प्रकार हैं तो you will go everywhere where God will take you. और परमेश्वर आपको जहाँ ले जाएगा वहाँ आप जाएंगे। Irrespective of your weaknesses, irrespective of what you are. और वो जब आप उसका आदर करेंगे तो वो आपका भी आदर करेगा। He is the potter, you are the clay. वो आपका कुम्हार है, आप उसके मिट्टी हो। Okay. Now go to
1:8. Jeremiah 1:8, no? Verse हाँ, यिर्मयाह कि 1:8 पढ़िएगा। 8. Do not be afraid of their faces. तू उनके मुख को देखकर मत डर। We are looking at people's faces, no? Bajrang Dal, this and who they say, no? हाँ, हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, ये दल वो दल, है ना। जैसा पास्टर जी ने कहा कि ये सारी चीजें, I am there to deliver you, says the Lord. और मैं उन सब चीजों से आपको छुड़ाना चाहता हूँ। Do not be afraid. Don't look them from the outside, because our natural eyes are deceiving eyes. हम उन्हें अपने उन आंखों से ना देखें, वो आपको धोखा दे रही हैं। So our natural eyes, हमारे जो वास्तविक आंखें हैं, they have got sin inside. वो अंदर पाप में उस प्रकार हैं। So you are most likely to get deceived. तो ये कारण बन सकता है कि आप जो है आप जो आपको वो धोखा दे सके। Okay, then verse 9 says, 9वां वचन इस प्रकार कहता है, then the Lord put his hand and touched the mouth of prophet Jeremiah. और यहाँ पर 9वें वचन में कहता, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। Yeah. And then the Lord said unto Jeremiah, और तब यहोवा ने मुझसे कहा, behold, I put my words into your mouth. देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। So that is very powerful. तो ये बड़ा सामर्थी है। So how do you pray this prayer right now? किस प्रकार आप इस प्रार्थना को अभी करेंगे? How do you pray? कैसे करेंगे? You understand something? क्या आप समझ पाए? So you have to take a step of faith. तो आपको विश्वास का कदम बढ़ाना है। So this hand of yours आपके इस हाथ को is anointed. जो परमेश्वर ने अभिषेक किया है, By faith, विश्वास के द्वारा you put a hand over your mouth. आप अपने मुंह पर इस हाथ को रखें, And then what you do? और उसके बाद आप क्या करेंगे? You just touch your mouth. But when you're touching, you will not be able to say. So you have to put somewhere around the place, okay? और तो आप जब ये आपको छूना है अपने जीभ को, लेकिन आप छुएंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे, इसलिए मुंह के कहीं आसपास पकड़ना है। So it is just as you're stretching on somebody, you just stretch it towards your mouth. और अपने मुंह के तरफ आप इसको जैसे दूसरों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, उस प्रकार अपने मुंह के तरफ बढ़ाएं। And then and what he says, और फिर इस प्रकार बोले, Lord's word be put in my mouth. परमेश्वर का वचन मेरे मुंह में दिया गया है। Yeah. So that I receive by faith. और मैं वो विश्वास के द्वारा उसे मैं पाता हूँ। I have the anointing of God. और मुझे उस परमेश्वर का अभिषेक मिला है। When I speak जब मैं बोलूं from my mouth, अपने मुंह से, supernaturally, और जो अलौकिक तौर से God's power is going to flow. परमेश्वर का सामर्थ कार्य करेगा। Okay. Now you can remove your hand. अब आप अपने हाथों को हटा सकते It's हैं। already activated. ये आपके जीवन में लागू हो गया है। Okay. आमेन। Amen. So these things are going to happen. ये बातें होंगी आपके जीवन से। Okay. So now it says verse 10. और 10वां वचन इस प्रकार कहता है, I have this day to set you over the nations. सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। Over the kingdom. और उन जो राज्यों के ऊपर, To root out and to pull down. उन्हें गिराने और ढा देने के And लिए, to destroy and to throw down. नाश करने और काट डालने के लिए, To build and to plant. उन्हें बनाने के लिए और रोपने के लिए। So that is what it's saying. यही यहाँ पर वचन कहता है, I have set you over. मैंने आपको बनाया ठहराया है। So you're not below, you're above. आप नीचे नहीं है ना ऊपर हैं। And above you is He, the Creator, Lord. और आपके ऊपर वो जो आपको बनाने वाला परमेश्वर है। Yeah. So then the Lord said to me, then he's talking about his. We'll just skip that, okay? Verse 11. Yeah. Okay, fine. We'll read verse 11. Yeah. Please हम read. 11वें वचन को भी पढ़ेंगे। Yeah. यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। आमेन। This is very powerful. I will not explain to you, but have to read this, okay? For yourself. आपको ये अपने आप पढ़ना है ये वचन। What do you see? क्या आप देख रहे हैं? I will not give everything answers, okay? You just have to ask God to reveal to you. मैं सारे चीजों के उत्तर नहीं दूंगा, आप परमेश्वर से मांगना है कि आपको प्रकट करे। You got to catch it grab it in the spirit for yourself. और आप आत्मा में उन चीजों को पा ले प्रभु से। And the word, verse 13.
और 13वां वचन, Then the word of God came to me second time. और फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा। Then read it. और पढ़िएगा उसे आगे। और उसने क्या दिखाई पड़ता है? हम मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक अंडा दिखाई पड़ता है, जिसका मुंह उत्तर की दिशा की ओर से है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यहोवा की यह वाणी है, मैं उत्तर दिशा के राज्यों और कुलों को बुलाऊंगा, और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उसके चारों ओर की शहरपनाह और यहूदा और सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन लगाएंगे। Yeah, go ahead. आगे चाहिए। उसकी सारी खराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया। इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उससे कह। तू उनके मुंह को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो भी सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। इसलिए बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। See, that is what is happening. Whatever is going to come against you, if your foundation is going to word, if you hear every day, you'll become so strong. Like this verse 18, a fortified city and iron pillar and bronze walls against the whole land, against the kings of Judah, against its princes, against its priests, and against the people of the land. और जब आप जड़ वचन में पकड़े होते हैं और उस प्रकार प्रभु में सामर्थ्य होते हैं, तो हर एक चीज़ें जो आपके विरोध में आती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना, आप उसमें बने रहते हैं। What is the problem? क्या है समस्या? People will come to attack you. You go into their as a trap. और जब लोग आप उनके पास जाते हैं और एक जाल में जैसे फंस जाते हैं। So there are certain cases that can happen. और जो ऐसा कुछ समय हो सकता है कि आप ऐसी परिस्थिति में फंसे, But when you call unto Him, लेकिन जब आप उसके नाम से बुलाए गए the हो, moment you call unto Him, जब आप उसके नाम से बुलाए गए हो, you say, Lord, आप बोलते प्रभु, I'm calling to you, I'm connecting to you. मैं आपको बुलाता हूँ, मैं आपसे जुड़ता हूँ, He will help us. और वो हमें सहायता करेगा, They will deliver you, they'll rescue you. और वो आपको छुटकारा देगा, आपको बचाएगा। All those who give me trouble, और जो कोई मुझे समस्या देते हैं, Lord, प्रभु, give them tribulation. और उनको उस प्रकार के जो है ट्रिबुलेशन से ले जाए। See, I'm a warrior. I'm not a person who is going to just keep quiet. और मैं उस प्रकार एक योद्धा के समान हूँ, मैं चुप नहीं बैठना चाहता। Okay, you know Prophet Elijah, right? आप एलीजा के बारे में आप जानते हैं। So whenever when they came against him, these two always come retaliate. He should not keep quiet. और He वो was a righteous हमेशा person. शांत नहीं, बल्कि वो चुप नहीं बैठता था। He is not going to slap and beat and all those type of things. That's वो not मार पीट करने नहीं जाता था। because God is a God of war. वो परमेश्वर जो है युद्ध का परमेश्वर है। So we go to war, हम एक युद्ध में हैं, and every time when we war, जब हम युद्ध में होते हैं, जब we use God's word to fight our battles. और तो हम अपने युद्ध को लड़ने के लिए परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करते हैं। Not the flesh. हम शारीरिक तौर से नहीं लड़ते। Pastor, what time will we end up by now? It's okay. 8:30. Okay. So remember these things. तो आप इसे याद रखें। So it says about, first it talks about I'm young and all these things. Lord speaks to me. Your mouth, you're already activated. Okay. इस प्रकार नहीं कहना कि वो परमेश्वर का वचन जो कार्य कर रहा है और मेरे जीवन में वो लागू हो चुका है। Whatever we have read right now, we already release a prophecy against your life. और Over your life. Sorry. जो भी वचन हमने अभी पढ़ा है आपके जीवन के ऊपर जो है
जो है परमेश्वर जो है आपके जीवन के ऊपर वो एक भविष्यवाणी के तौर पे है. Then they are given a lot of explanation over here about all these things, fortified city, all these things. But finally, the Lord says, every person is going to come against you. Suppose there is another pandemic worse than COVID. In the coming days, you have to be prepared for the worst to worst. वीडियो बंद हो गया. You have to be prepared for the worst. और जो हमें तैयार रहना है बुरे से बुरे समय के लिए भी. If you have already got victory in the COVID area without putting mask and without these vaccines, then this next battle will not be very difficult for you. और अगर आप जो है कोविड के समय से उस प्रकार हर एक चीजों का सामना आपने किया है तो आगे की चीजें आपके लिए कठिन नहीं होंगी. I am waiting for the next battle. मैं अगले युद्ध के लिए तैयार हूँ. Lord is with me. परमेश्वर मेरे साथ है. He will protect me. वो मुझे संभालेगा. I serve the God of Shadrach, Meshach, Abednego. मैं उस परमेश्वर की सेवा करता हूँ जो शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर है. They said no means no. उन्होंने कहा ना तो ना. They made a firm decision. उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया. They were not double-minded people. वो दो तरह के दिमाग में नहीं थे. They were different from the people, all the people of their time. और उस समय के लोगों से वो कुछ अलग थे. So that is what he's saying. वही तो यहाँ पे कहा है. A chosen man of God परमेश्वर के चुने हुए लोग will not work in the counsel of the world. जो है दुष्टों की उस युक्ति पर नहीं चलते. God is above everything. परमेश्वर हर एक चीजों के ऊपर है. He is full and final. वो जो परिपूर्ण है. I stand on his promises. मैं उसके वायदों पे खड़ा हूँ. God is not a man that he should lie. परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो वो झूठ बोले. In the book of Numbers 23 verse 19 says that. और गिनती 23 के 19 में इस प्रकार कहता है. No need to open it also. उसे खोलने की जरूरत नहीं If है. you want, you can read for yourself also. और आप अगर अपने आप उस बातों को पढ़ सकते हैं. Okay, now we'll pray a small confession. Okay, some riddle declarations. और हम एक छोटे प्रार्थना को कुछ हम उसकी घोषणा करेंगे. We will declare such things over our life. हमने अपने जीवन के ऊपर उसकी घोषणा करेंगे. Because we want, some fellow were not there in the afternoon time. कितने लोग जो दोपहर के सभा में नहीं थे, कितने लोग. Yeah, there are a few of them who were not there. और So we are going to pray now for a short time, not for a long time, because some of them are from far off, so they'll have to leave. So we will try to make it a little shorter. हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि कुछ लोग बहुत दूर से भी हैं यहाँ पर. So if you need more prayer, you must come little early. तो इसलिए जो आप उस प्रार्थना को चाहते हैं तो आप जल्दी आइएगा. Because we don't want people to go late also and get tired. Means it's a distance is far, right? So that is the reason. तो जो दूरी ज़्यादा है इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई दो I'm देर not से. tired. I'll be awake till I can stay now on my feet for even 12, 1 o'clock, 2 o'clock also. There's no problem. I'm already fresh. I will take chair. Ayo, no problem. Okay. So yeah. Okay. Let's close our eyes. अपने आँखों को हम बंद करेंगे. You can close your Bibles. हम अपने बाइबलों को रख सकते You हैं. got to open your mouth loud enough, wide enough to fire the bullets and arrows against the evil one. Okay? आप अपने आवाजों को ऊंचा कर सकते हैं, जैसे गोलियां तेजी से दागी जाती हैं, तीर कमान से निकलता है, उसी प्रकार अपने आवाजों को आप ऊंचा कर सकते हैं अंधकार के विरोध में. I hope you are loaded with God's word. मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के वचन से भर गए होंगे. Every time when you speak God's word, जितनी बार आप परमेश्वर का वचन बोलेंगे. I also say to those who are watching, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो जूम पे मुझे देख रहे हैं. so please close your eyes. अपने आंखों को हम बंद करें. Humble request is to close your eyes. अपने आंखों को हम जरूर बंद करें. But see that you don't close your ears. Huh? कानों को बिल्कुल ना बंद If you करें. close your ears, जब आप अपने कानों को बंद you will करेंगे not be able to hear. आप सुन नहीं And पाओगे. then you will not be able to speak. आप बोल नहीं पाओगे फिर. And then you will sleep. अब फिर आप सो जाओगे. Okay, let's close your eyes. आइए हम अपने आंखों को बंद करें. Whatever pastor says जिस प्रकार पास्टर जी ने बोला in Hindi, हिंदी में, you will follow what he's saying. और जो वो बोल रहे हैं उसके पीछे पीछे आपको बोलना है. In Hindi. हिंदी में. Okay. I destroy मैं तोड़ता हूँ the power of every satanic arrest अंधकार के हर एक बंधनों को in my life. मेरे जीवन से. In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से I destroy मैं उसे तोड़ देता हूँ. the power उस सामर्थ को, of every satanic arrest हर एक अंधकार के उस गुलामी को in my life. मेरे जीवन से. In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से all satanic arresting agents और जो हर एक अंधकार के जो हमें जकड़े हुए जो अंधकार के सामर्थ हैं,
Release me. मुझे स्वतंत्र हो करे In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। All satanic agents, हर एक अंधकार के जो कार्य हैं, arresting agents, जो मेरे जीवनों को काबू में कर रखे हैं, release me. मुझे स्वतंत्र करे In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। I command. मैं आज्ञा देता हूँ, I command. मैं आज्ञा देता हूँ, I मैं command. आज्ञा देता हूँ। Every spiritual contamination, हर एक जो आत्मिक जो युद्ध जो है, every spiritual contamination, contamination means, huh? Contamination means like, you're contaminated, no, everything garbage like. जो भी जो आत्मिक जो कचरा हमारे जीवनों में भरा हुआ है, I command every spiritual contamination जो हर एक आत्मिक बुराइयां जो हमारे अंदर बसी हुई है in my life मेरे जीवन में, to receive, उसे प्राप्त करने के लिए, to receive प्राप्त करने के लिए, cleansing by the blood of Jesus. पवित्र लहू के द्वारा जो शुद्ध करने के लिए, Let the brush of the Lord परमेश्वर का वो जो हमारे जीवनों को साफ करने वाला कार्य है, scrub out every dirt, और हर एक दागों को धो के साफ करने पाए in my spiritual pipe, मेरे जो आत्मिक जो उस जीवन में, in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Let the brush of the Lord यीशु मसीह का साफ करने वाला कार्य, scrub out और जो हर एक दागों को साफ करे, every dirt in my spiritual pipe, और जो हर एक जो गंदगी मेरे आत्मिक जो पाइप में है, in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से I destroy, मैं नाश करता हूँ, I destroy मैं नष्ट करता हूँ everything हर एक चीजों को that is representing me जो मेरे द्वारा दर्शाई जा रही है, in the demonic world, और जो अंधकार के उस जो राज्य में with the fire of God, परमेश्वर के आग के द्वारा, in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से I destroy मैं नष्ट करता हूँ everything हर एक चीजों को that is representing me जो मेरे जीवनों को आगे प्रस्तुत करता है, in the demonic world जो अंधकार के उस राज्य में with the fire of God, परमेश्वर के आग के द्वारा, in the name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम से। Lord, प्रभु यीशु teach me मुझे सिखा, to die to myself. प्रभु अपने आप को मारने के लिए सिखा। Lord, teach me प्रभु मुझे सिखा to die to self. अपने आप को समाप्त करने के लिए। Every rusted spiritual pipe in my life, हर एक जो रुकावट बने जो मेरे जीवनों में जो चीजें हैं, every rusted spiritual pipe in my life, और हर एक रुकी हुई चीजें जो मेरे उस आत्मिक जो पाइप में है, receive wholeness, और जो खुल जाने पाए, receive wholeness, और उस खुल जाने पाए वो चीजें, receive wholeness, खुल जाने पाए वो, receive wholeness, और वो खुल जाने पाए in the name of Jesus. यीशु के नाम से। Spirit of the living God, परमेश्वर के जीवित आत्मा, Spirit of the living God, परमेश्वर की जीवित आत्मा, quicken the whole of my being, और वो जल्द से जल्द मेरे हर एक चीजों में आ जाए in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Spirit of the living God, परमेश्वर की जीवित आत्मा quicken the whole of my being मेरे हर एक चीजों में जल्द से जल्द कार्य करे in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। I command मैं आज्ञा देता हूँ
every hole हर एक जो छेद है in my spiritual pipe मेरे आत्मिक उस जो पाइप में, to be closed, वो सारे बंद हो जाने पाए, to be वो closed बंद हो जाने पाए in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से I command every hole मैं हर एक छेदों को आज्ञा देता हूँ in my spiritual pipe मेरे आत्मिक जो पाइप में, be closed in the name of वो Jesus. बंद हो जाए यीशु के नाम से। Lord God, प्रभु यीशु stretch me, मुझे साफ करें, stretch me, मुझे प्रभु खींचें and renew my strength. और मेरे सामर्थ को नया कर दे। Lord God, प्रभु परमेश्वर stretch me and renew my strength. मुझे खींचे और मेरे सामर्थ को नया बना दे In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Holy Spirit, पवित्र आत्मा open my eyes. मेरे आंखों को खोल दे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा open my मेरे eyes आंखों को खोल दे, to see beyond the visible. मैं देख पाऊं जो मेरे आंखों से नहीं दिखने वाली चीजों को मैं देख पाऊं And make the invisible real to me. और जो नहीं दिख रहे वो चीजें मेरे सामने हो जाने पाए In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। I appeal everybody to say, मैं please, चाहता हूं सब लोग बोले, don't get lazy. कोई भी आलसी ना हो। Lord, प्रभु ignite my calling. मैं अब Ignite means fire, ignite, give life to my calling. प्रभु मेरे जो जीवन को प्रभु आप मुझे जीवन दे मेरे उस बुलाहट को With your fire. आपके आग के द्वारा। Lord, प्रभु ignite प्रभु परमेश्वर एक नयापन दे मेरे my जीवन में, calling मेरे उस बुलाहट को। with your fire. प्रभु अपने आग से Let my spiritual pipe मेरे जो आत्मिक पाइप है receive the strength of God. और परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त करने पाए Against any condemnation. और हर एक जो विरोध में उठने वाले बातों के Condemnation means all filth. और जो हर एक बुराइयों के In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Holy Spirit, पवित्र आत्मा open my eyes मेरे आंखों को खोल दे and let me have और होने दे मेरे जीवनों में a revelation vision of Christ. एक प्रकाशन और दर्शन परमेश्वर की नजर का In the name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम से। Holy Spirit, पवित्र आत्मा open my eyes मेरे आंखों को खोल दे and let me have और ऐसा होने दे a revelation एक प्रकाशन vision of Christ. और परमेश्वर के दर्शन को देखने वाली आंखें In the name of यीशु के Jesus. सामर्थी नाम से। Lord, प्रभु यीशु free my spirit मेरे आत्मा को स्वतंत्र कर दे to follow the leading of the Holy Spirit. प्रभु की उस अगुवाई में चलने के लिए। Lord, free my spirit प्रभु मेरे आत्मा को स्वतंत्र कर दे to follow the leading of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए। I receive मैं रिसीव करता हूं a heavenly flushing और जो एक स्वर्गीय जो सामर्थ को in my spiritual pipe. मेरे उस आत्मिक उस पाइप में मैं उस जो प्राप्त करता हूं उस चीज को In the name of Jesus. यीशु के नाम से I receive. मैं ग्रहण करता हूं I receive मैं ग्रहण करता हूं heavenly flushing. और जो स्वर्गीय एक वर्षा को मेरे ऊपर Flushing. और जो जिस प्रकार वो फ्लश करता है उस प्रकार In my spiritual pipe. मेरे आत्मिक उस पाइप में In the name of Jesus. यीशु के नाम से I confess मैं उससे विश्वास करता हूं that my spiritual pipe मेरा जो आत्मिक पाइप है shall be effective वो जो इफेक्टिव होने पाए सामर्थी होने पाए throughout my life. वो मेरे जीवन भर में
In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से I confess मैं समर्पित करता हूँ, that my spiritual pipe मेरा जो आत्मिक पाइप है shall be effective वो जो सामर्थी होने पाए throughout my life. मेरे जीवन भर में, In the name of Jesus, यीशु के नाम से। Holy Spirit, पवित्र आत्मा teach me to pray प्रार्थना करना सिखाएं through problems हर एक समस्याओं के सामने, instead of praying about them. और उनके लिए प्रार्थना करने से बढ़कर। In the name of Jesus, यीशु के नाम से Holy Spirit, पवित्र आत्मा teach me सिखाए मुझे to pray प्रार्थना करना सिखाए through the problems. Through the problems, समस्याओं में हो करके, instead of praying about the problems. और जो समस्याओं के लिए प्रार्थना करने से बढ़कर, In the name of Jesus, यीशु के नाम से Lord, deliver me परमेश्वर मुझे छुटकारा दें from every lie I tell myself. मैं जितने भी झूठ अपने आप से बोलता हूं उन सब से। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Lord, this day, प्रभु इस दिन में, thank you for doing and activating many things. और जो है हर एक चीजों के लिए धन्यवाद जो मेरे जीवनों में आपने प्रभु चला दिया है कार्यों को। Every evil word हर एक जो गलत बातों को spoken over me मेरे ऊपर जो बोली गई हैं by those in authority और जो उन जो सामर्थ के द्वारा in the form of a curse, और जो जिस प्रकार के जो कर्ज के द्वारा, श्राप के द्वारा, I break the power of these words. मैं उस बातों को खंडित करता हूँ I renounce these words. और मैं उसको दोबारा से बोलता हूँ। These words shall never, never come to pass over my life. और ये शब्द फिर कभी मेरे जीवनों में नई प्रभाव डालेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। That Galatians chapter 3 verse 13 says, और जैसे गलातियों 3:13 बोलता है, You have redeemed me from the curse of the law. प्रभु आपने मुझे उस छुटकारा दिया है उस जो कानून से जो मेरे जीवनों के विरोध में है। You became a curse for me to be blessed. और तू मेरे लिए श्राप बन गया ताकि मेरे जीवनों में छुटकारा लाए। Curse is everyone that hangs on a tree. और जो श्राप है जो जिस प्रकार उस पेड़ में लटक जाता है, You were nailed on the cross. You hang on that cross. आपने क्रूस पर प्रभु आप लटक गए। Before I was born, मेरे जन्म से पहले ही you paid your life by you paid me from every curse. You have redeemed me. और आपने प्रभु कीमत चुकाई और हर एक प्रभु श्राप से आपने मुझे छुड़ाया है। Therefore, sickness इसलिए बीमारी and all forms of curses, हर एक प्रकार के श्राप they have got no power over me. वो मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रखते। Witchcraft, और जादू टोना, I am free from it in the name of Jesus. और मैं यीशु के नाम से उन सब बातों से स्वतंत्र हूं। I cast all the spirits operating exercise secretly over me by those और मैं उन सभी चीजों को डांटता हूं, उन आत्मा के कार्यों को जो मेरे ऊपर छिप के कार्य कर रहे हैं। You have no power over me. वो आप उसका कोई अधिकार नहीं है मेरे ऊपर। The blood of Jesus is upon me. प्रभु का लहू मेरे ऊपर है। Sickness has no place in my body. और बीमारी को मेरे शरीर में कोई जगह नहीं है। My body is anointed by the Holy One. मेरा शरीर जो है वह अभिषिक्त है उस प्रभु के द्वारा। Therefore, that same anointing इसलिए वही अभिषेक destroys तोड़ता है every yoke of the devil. हर एक शैतान के जुए को। Thank you, Jesus. Whatever I have spoken right now, इस वक्त जो कुछ मैंने बोला
I believe. मैं विश्वास करता हूँ, I believe. मैं विश्वास करता हूँ, By faith, विश्वास के साथ I receive. अब मैं प्राप्त करता हूँ। All glory to you, Lord Jesus. सारी महिमा प्रभु आपको All praise to you. और सारा आदर आपको प्रभु जी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Amen. आमेन, आमेन।